All have opened your book, student. So Yes, Yes, sir. sir. let's focus now here in the page number 30, last para, which is given here. Yesterday, up to here, we have completed. Once again, I would like to get revision of previous last para what we have completed yesterday. That is because you have done a good action, said the prince. Here, prince is saying that you are feeling warmth, whether this it is the weather of severe cold, yet you are feeling warmth, it means you have done a good job. So here, student, then the little swallow began to think and then fell asleep. When he was in deep thinking, meanwhile, he felt asleep. Then thinking away made him sleepy. ये पूरे दिन की दिनचर्या के बारे में सोचते हुए विचार करते हुए उसे नींद आ जाती है. Who is that? Swallow. Now, when day broke mean morning time. When day broke, he flew down to the river and had a bath here. Then tonight I go to Egypt. Who is saying swallow? He went there by the side of the river and completed his bath. Then he is saying that today I have to go to Egypt, said the swallow. And he was in high. What's high? In next page, we have to focus here, student. Here, he is saying that in high spirit at the prospect. Prospect means hope. उसको एक आश होती है. यू नो स्टूडेंट, वेन एवर यू हैव डन अ गुड जॉब, आप जब भी कुछ अच्छा कार्य करते हैं, परोपकार का कार्य करते हैं, शुभ वर्क, आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो आपको बेहतर फील होता है. So same situation here with swallow also. He is saying that I have high spirits at the prospect, and he visited all the monuments. Monuments mean beta स्मारक. Okay, स्मारक यादगार में बनाई गई जो बिल्डिंग होती है किसी की यादगार में वो स्मारक होता है. जैसे हम ताजमहल को ले लेते हैं, स्मारक है. ठीक है, मोनूमेंट्स है. सो मोनूमेंट इज, यू कैन राइट फॉर दैट. ये स्टूडेंट यादगार, स्मारक, मेमोरियल, गुड वर्ड फॉर दैट, मेमोरियल. ओके. He visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple. Steeple mean क्या होता है बेटा? Steeple, चर्च स्टेपल. आपने देखा होगा किस तरह से मंदिर हो, मस्जिद हो या फिर चर्च हो, एक लास्ट में बिल्कुल ऊपर ऊंचाई पर एक स्मारक जैसा गुंबद जैसा बना हुआ होता है, तो वहां स्टेपल उसको बोलते हैं. हिंदी मीनिंग होगी उसकी घंटा घर या ट्यूरेट, TURRET, ट्यूरेट. ओके, चलिए भाई आगे देखते हैं. यहाँ दिया हुआ है कि वो स्वेलो चर्च के स्टीपल पर बैठा हुआ है और चारों तरफ वो घूम टहल चुका है, खासकर मोनूमेंट्स को देख चुका है. When the moon rose, और जब चांद ऊपर आ जाता है, he flew back to the happy prince, यानी शाम हो गई तो फिर से वो उसी हैप्पी प्रिंस के पास चला गया. Have you any commissions for Egypt? He cried. I'm just starting. He cried. He is saying that have you any commissions for Egypt? What is commissions here, student? Task, आयोग. भाई क्या तुम्हारा तात्पर्य इजिप्ट भी जाना था? Was this your task also? Then what happened? I am just starting. Mean just I am about to go. मैं जाने ही वाला हूँ. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you stay with me one night longer? Would you like to stay with me one more night? I am waited for in Egypt
answered the swallow. Swallow is saying that, my friend, already they have gone 6 months before, 6 weeks before, and they are waiting me there. So I have to go there in Egypt. Then once again, swallow, swallow, little swallow, said the prince. Far away across the city, I see a young man in a garret. Now prince is saying that one more person is there. Who is in the garret? Garret means a small room, uppermost of the building, top of the building. There is a room that is dark room, and that is known as garret. And in the garret there is a person, there is a man who is lying there in the city. He is leaning over a desk covered with papers. He is leaning over the desk paper covered with papers. डेस्क पर कुछ पेपर पड़े हुए हैं और उस पर वो आगे की तरफ झुका हुआ है. जैसे हम लोग लिखते पढ़ते हैं तो क्या होता है, टेबल की तरफ, डेस्क की तरफ हम झुक करके लिखते हैं, पढ़ते हैं. And in the glass by his side there is a bunch of withered violets. And further prince is saying that, और अगले ही मोमेंट में राजकुमार कहते हैं कि उसके बगल में बड़ा हुआ एक ग्लास है जिसमें कुछ मुरझाए हुए बैगनी कलर के फूल हैं. विदर्ड मीन्स बेटा फेड अप, सूखा हुआ, मुरझाया हुआ. FED फेड अप, फेड अप, विदर्ड वायलेट्स. His hair is brown and crisp. द हेयर ऑफ दैट पर्सन, उसके बाल कैसे हैं, ब्राउन और क्रिस्प कलर के हैं. उसने कलर कर रखा है बालों को. एंड हिज लिप्स आर रेड एज ए प्रोमिग्रेनेट. अनार की तरह से उसके होठ लाल हैं. एंड ही हैज लार्ज एंड ड्रीमी आईज. और उसकी आंखों में बहुत बड़े बड़े सपने हैं. ही इज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर. और वो एक प्ले, एक ड्रामा लिख रहा है, थिएटर के डायरेक्टर के लिए एक ड्रामा लिख रहा है वो. बट ही इज टू कोल्ड टू राइट एनी मोर. वो इतना ठंड महसूस कर रहा है कि वो लिख ही नहीं सकता है. यहाँ आप देखेंगे बेटा नॉट नहीं यूज हुआ है, फिर भी ये नेगेटिव है. कैसे आप जान लीजिए, TOO, ही इज टू. जैसे ही वर्ब के बाद यूज हो इसका सेंस आता वेरी, बहुत. और दूसरा वाला जो टू है यहाँ, इसका सेंस है दैट ही कैन नॉट. प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट. तो इज आया हुआ है, प्रेजेंट टेंस है, इसलिए यहाँ हम कैन नॉट लिखेंगे. ये हो जाएगा. बट ही इज वेरी कोल्ड दैट ही कैन नॉट राइट एनी मोर. ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर है बेटा यहाँ. ठीक है. यहाँ दिया हुआ है कि वो इतना ठंडक महसूस कर रहा था कि वो लिख नहीं सकता है. देन देर इज नो फायर इन द ग्रेट. यहाँ दूसरा ग्रेट है. ग्रेट मीन्स भट्टी, अलाव जिसमें जलाया जाता है. देर इज नो फायर इन द ग्रेट एंड हंगर हैज मेड हिम फेंट. भूख ने उसको बेहोश कर दिया है. आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, सेड द स्वेलो, हु रियली हैड अ गुड हार्ट. वो जो स्वेलो था उसका हृदय भी बड़ा विनम्र था. वो तैयार हो जाता है. ही इज एक्सेप्टिंग दैट आई विल वेट वन मोर नाइट. एक और रात मैं यहाँ ठहरूंगा. ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्लेराइट. कि ये अगर हो सकता कि यंग प्लेराइट मीन्स ड्रामा लिखने वाला, यंग मीन्स नौजवान, वो नवयुवक जो ड्रामा लिख रहा है उसे मेरी एक और रूबी ले जाकर दे दो. अलास आई हैव नो रूबी नाउ, सेड द प्रिंस. हाँ बेटा. सर दूसरी बारी उसकी आंख में एकदम था. हाँ, तभी ये क्या कहता है, अलास आई हैव नो रूबी नाउ, सेड द प्रिंस. अलास इंटरजेक्शन वर्ड है बेटा. दुख व्यक्त करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं. ठीक है ना. तो बताता है कि अफसोस, अफसोस अब मेरे पास रूबी है ही नहीं. माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट. मेरी आंखों में जो भी था मैं तो दे चुका. दे आर मेड ऑफ, दे आर ब्लाइंड हो गया. हाँ बेटा. माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट. मेरे पास सिर्फ आंखें बची हैं, यानी आंखों में लगा हुआ रत्न ही बचा है. रूबी तो समाप्त हो गई है. दे आर मेड ऑफ रेयर सफायर्स. और वो बड़ी दुर्लभ मणिक हैं, सफायर्स हैं, नीलम कहते हैं उसे. विच वर, चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं बेटा. हियर दैट इज गिवन
You can see in the picture very clearly it is given that he is saying that rarely brought out of India's 1,000 years ago, और इन सफायर्स को भारत से हजारों साल पहले लाया गया था. He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. और वो आदेश देता है swallow को, कहता है कि तुम एक सफायर मेरी आंख से ले लो और उसे दे दीजिए, उस परेशान व्यक्ति को उसकी मदद कर दीजिए. He will sell it Yes, sir. to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said. और इस तरह से वो इसे किसी सुनार के यहाँ, ज्वेलरी वाले के यहाँ इसको बेच देगा और पैसे पाकर वो अलाव की व्यवस्था कर लेगा और ड्रामा को आसानी से पूरा कर लेगा, लिख लेगा. डियर प्रिंस, सेड द स्वेलो. स्वेलो ने कहा कि हे प्रिय राजकुमार, आई कैन नॉट डू दैट. एंड ही बिगैन टू वीप. मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ. एंड ही स्टार्टेड टू वीप. रोना शुरू कर दिया, उसको रोना आ गया दया की वजह से. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो. प्रिंस को नहीं, स्वेलो को बेटा, गौरैया को. यस सर. वो प्रिंस की ऐसी दयालुता पर भावुक हो जाता, उसको रोना आ जाता है. सेड द प्रिंस. यस सर. प्रिंस ने कहा, डू एज आई कमांडेड यू. जैसा मैंने कहा है आप वो ऐसा कीजिए. सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंसेस आईज and flew away. Was easy enough to get in, as there was a hole in the roof. और जैसा कि राजकुमार ने कहा उसने वैसा ही किया. एक सफायर लेता है और उड़ चला. उसके कमरे में जाना बड़ा आसान था, बिकॉज देयर वॉज अ होल इन द रूफ. उसके छत में एक होल थी, वहां से वो प्रवेश कर गया. Though this he darted and came into the room, the young man had his head buried in his hands. और जैसे ही वो कमरे में प्रवेश करता है उससे वो क्या देखता है, that the young man buried in his hands. अपने हाथों के बीच अपना सिर रख के पड़ा हुआ था. So he did not hear the flutter of the bird's wings. इसलिए वो पंछी के पंख के फड़फड़ाहट को नहीं सुन सका. ठीक, यहाँ फ्लटर वर्ड है. फ्लटर मीन्स पंख फड़फड़ाना. एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफायर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट्स. और जैसे ही वो जगता है वो देखता है कि मुरझाए हुए बैगनी कलर के फूलों के बगल में नीलम रखा हुआ है, सफायर रखा हुआ है. आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, ही क्राइड. I am beginning to be appreciated, he cried. This is from some great admirer. Now I can finish my play. खुश हो जाता है जैसे ही वो देखता I am beginning to be appreciated. मैं उसकी प्रशंसा करना चाहूँगा. This is from some great admirer. ये निश्चित रूप से किसी महान प्रशंसक की तरफ से है. Now I can finish my play. अब मैं अपनी ड्रामा राइटिंग को कंप्लीट कर सकता हूँ. And he looked quite happy. Now he is feeling very happy. The next day the swallow flew down to the harbor. Harbor means the place where there is shipyard, जहाँ पानी की जहाजें रुका करती हैं. Then when he went there, he sat on the mast of a large vessel and watched the sailors working. वो एक जहाज की मास्ट पर, मास्ट मीन बीचों बीच में एक पोल लगा होता है बेटा, जिसपे तिरपाल लगता है. तो बिल्कुल ऊंचाई पर बैठकर वो देखता है जिस तरह से सेलर्स, मछुआरे सब काम कर रहे थे. ठीक, हाँ, स्वेलो देखता है वहां से बैठकर, मास्ट पर बैठता है. आई एम गोइंग टू इजिप्ट, क्राइड द स्वेलो. कि मैं तो अब इजिप्ट जा रहा हूँ. बट नो बडी माइंडेड, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया. एंड वेन द मून रोज, जैसे ही चांद फिर से ऊपर आ गया, उदय हो गया, ही फ्लू बैक इनटू द हैप्पी प्रिंस. और फिर से वो उड़कर उसी हैप्पी प्रिंस के पास चला आता है. आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड. उसने कहा कि मैं तुमको यहाँ बाय कहने आया हूँ, बाय विश करने आया हूँ. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो,
said the prince. Will you not stay with me one night longer? फिर से वही राजकुमार कहते हैं कि अरे swallow, क्या एक और रात तुम मेरे साथ नहीं रुक सकते यहाँ? It is winter, बहुत ठंड है, answered the swallow. Swallow ने कहा बहुत ठंड है. And the swallow will soon be here. And the sorry and the snow will soon here. जल्द ही यहाँ बर्फबारी शुरू हो जाएगी. In Egypt the Yes, sun sir. is warm on the green palm trees. और इजिप्ट में पाम के पेड़ के पत्तों पर सूरज की किरणें पड़ेंगी, वहां मुझे गर्माहट मिलेगी. एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजली अबाउट देम. और इजिप्ट में कीचड़ में क्रोकोडाइल्स वो भी धूप सेंक रहे होंगे, बिल्कुल सुस्त पड़े होंगे, वहां पड़े रहेंगे. Because Yes, sir. there is weather is sun full of sunshine. So in the next line, Yes, student, sir. let's move here. That is given here. Now in the square below, he is saying that in the square below, square mean beta यहाँ चबूतरे से मतलब, in the square below said the happy prince, there stand a little match girl. There is a girl whose business is of match. Okay, match girl. She Yes, has sir. let her matches fall in the gutter. match girl mean माचिस होता है बेटा. माचिस ले हुए एक बच्ची वहां चबूतरे के पास नीचे है. She has let her Sir, matches fall in the यहाँ पे gutter. चलिए थी। और उसकी उसकी जो मैच है, उसकी जो माचिस है, वो कहाँ गिर वो जाती है? गीली हो गई थी। गटर में तो गिर नदी में जाती गिर है. जाती है। गटर यहाँ दिया हुआ है बेटा, गटर. गटर में गिर जाता है जिससे वो Yes, गीला sir. हो जाता है. फिर क्या होगा? जाहिर सी बात वो है तो माचिस है। नहीं जलेगी. एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड. पूरी तरह से गीली हो गई, गंदी हो गई. हर फादर विल Yes, sir. बीट हर इफ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी. और अगर वो कुछ पैसे नहीं लाती है तो उसके फादर उसको पनिश भी करेंगे. एंड शी इज क्राइंग, एंड दैट्स व्हाई शी इज क्राइंग. वो रो Yes, रही है sir. बेचारी. शी हैज नो शूज. Yes, sir. उसके पास कोई शूज भी नहीं है. और स्टॉकिंग्स, एंड हर लिटिल हेड इज बेयर. उसका सिर भी खुला हुआ है. उसके पास से स्टॉक में कुछ है भी नहीं. कहाँ से मैनेज करेगी? देन व्हाट हैपन हियर स्टूडेंट? प्लक आउट माय अदर Sir, आईज. तो यहाँ वो तो पहले थी, उसके पास हाँ, उसके पास तब तक एक हैप्पी भी नहीं है उनका। प्रिंस, हैप्पी प्रिंस फिर से वही बात कहते हैं कि तुम मेरे एक सैफायर को फिर से निकाल लो. ओके, सर आई उसका आई मुकुट में विल. जो था, बिल्कुल. उसके मुकुट यहाँ का जो पत्थर था उसको। गुड 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 बेटा. अब आगे बताता है, आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर. ठीक है, एक हम और रात आपके साथ ठहर जाएंगे. हु इज सेइंग? स्वैलो. बट आई कैन नॉट प्लग यस। आउट योर आई. लेकिन मैं आपकी आंख को तोड़कर नहीं निकाल सकता. यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन. फिर आप पूरी तरह से अंधे हो जाओगे. स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस. डू एज आई कमांड यू. जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो. सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई एंड darted down with it. Once again he flew towards. He swooped past the match girl. Swooped past means पंख को झपकाना. He swooped past means flew away towards the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. उसके हाथ की हथेली में उसने उस बहुमूल्य रत्न को गिरा दिया. बेटा What a कैसे lovely गिरा दिया। bit of glass. What a lovely bit of glass. कितना प्यारा ये ग्लास है. वो ग्लास कहती है उसको, चमकदार सफायर को. ठीक है भाई, शीशा भी चमकीला होता है. Cried the यस little girl सर। and she ran home laughing. हंसते हुए वो घर की तरफ दौड़ती है. Then the swallow came back to the prince. और फिर से वो राजकुमार के पास उड़कर आता है. स्वैलो. यू आर ब्लाइंड नाउ, ही सेड. आप तो अब पूरी तरह से शूर हो चुके हैं. सो अंधे हो आई विल स्टे विद ब्लाइंड हो यू चुके हैं। ऑलवेज. मैं अब तुम्हारे पास सदा के लिए रहूंगा. मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब तुम्हारे लिए लाइफ सरवाइव यस। करना आसान नहीं रह गया. आपको मुश्किल हो हेल्प गया है। की जरूरत होगी. नाउ इन द नेक्स्ट लाइन यस बेटा, सर। हियर. Then, no little swallow, said the poor prince. बेचारे राजकुमार ने कहा.
आप ऐसा ना करो, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, आपको इजिप्ट जाना ही चाहिए। नो, आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, सेड द स्वेलो, एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट, और वो राजकुमार के पैरों के नीचे, पैर के पास सो जाता है, कहता मैं अब नहीं जाऊंगा। Yes, sir. ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंसेस शोल्डर, दिन भर वो प्रिंस के कंधे पर बैठा रहता था। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन द स्ट्रेंज लैंड्स, और उस विचित्र वहाँ भूमि पे पर क्या जो हुआ कुछ था वो देखता था वो सारी बातें बताता उसे था बताता था। प्रसन्न राजकुमार को। ठीक। Yes, sir. डियर लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, राजकुमार पूछते हैं कि डियर लिटिल स्वेलो, यू टेल मी ऑफ मार्वेलस थिंग, बट मोर मार्वेलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ men and women। लोगों के, स्त्री पुरुष सभी पीड़ित हैं, ठीक है, उसके अलावा बियॉन्ड दैट प्रॉपर लिमिट, टेल मी समथिंग अबाउट फैंटास्टिक न्यूज। देन देयर इज नो Yes. मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, ऐसा कोई रहस्य नहीं याद दिया, देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी। मिजरी, प्रॉब्लम, समस्याओं से के जैसा कोई मिस्ट्री नहीं हो सकता उससे बढ़कर। ओके, मिस्ट्री मीन रहस्य। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरे शहर के ऊपर से उड़ो काफी ऊंचाई से, लिटिल स्वेलो, एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और मुझे बताओ क्या हो रहा है। देन सो द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी एंड सा द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस, किस तरह से खूबसूरत घरों में अमीरों के यहाँ अच्छे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। while the beggars were sitting at gates, और भिखारी वो गेट पर बैठे हुए हैं। he flew into dark lanes, और वो अंधेरी गलियों से भी होकर उड़ता है। and saw the white faces of Yes, starving sir. children looking outside listlessly at the black streets, और उन गंदी काली गलियों में किस तरह से अनगिनत बच्चे, भूख के मारे उनका चेहरा सफेद पड़ गया है, भूखे बच्चे भी हैं। अंडर द आर्चवे ऑफ द ब्रिज टू लिटिल बॉयज वर lying in each other's the archway of arms to try and keep themselves warm, और आर्चवे जो टेढ़ा सा फ्लाईओवर गया हुआ है, वहां दो बच्चे ऐसे भी हैं जो ठंड के मारे एक दूसरे के भुजाओं में, एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले एक दूसरे को वार्म अप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ठंडक में उनको बेहद कड़ाके की ठंड का महसूस हो रहा है, Yes, sir. और वो एक दूसरे को गर्मी प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे Yes, के हाथ sir. को पकड़ के बैठे हुए हैं। हाउ हंग्री वी आर, हम कितने भूखे हैं। कौन कहता है? दे सेड, वो दोनों बच्चे कहते हैं। यू मस्ट नॉट लाई देयर हियर, शाउटेड द वॉचमैन, बच्चे कहते वॉचमैन भी चिल्लाता, तुम्हें यहाँ नहीं सोना, हटो यहाँ से, भागो यहाँ से। एंड दे वॉन्डर्ड आउट इनटू द रेन, वो बेचारे बारिश में भीगते हुए बाहर निकल जाते हैं। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड, फिर वो उड़कर वापस आता है और प्रिंस को बताता है व्हाट ही हैड सीन, जो कुछ उसने देखा था शहर में। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा कि मैं एक फाइन गोल्ड से मैं ढका हुआ हूँ, मेरे ऊपर एक गोल्ड की शीट का कवर है। देन यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुम्हें इसे निकाल लेना चाहिए। लीफ बाय लीफ, एक एक परत करके पत्तियां निकाल लेनी चाहिए। एंड गिव इट टू द पुअर, और उन गरीब को दे दो। ओके, द लिविंग ऑलवेज थिंग, चलिए भाई देखते हैं यहाँ आगे हैं। नेक्स्ट पेज पर, यहाँ दिया है द लिविंग ऑलवेज थिंग लिविंग, just a minute, here prince is saying that the living always think that gold can make them happy, ये जो सजीव है अर्थात इंसान, ये विश्वास रखता है कि सोना एक ऐसी चीज है जो उनको खुशहाल रखता है, खुशहाल रख सकता है। हर आदमी पैसे के पीछे भागता है, ज्वेलरी के पीछे भागता है, इंसानों को ये लगता है कि उनको इसी से सुख मिलेगा। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey,
और एक एक करके उसने परत दर परत सोने की जो शीट थी सब निकाल लिया, जब तक कि राजकुमार का स्टैचू बिल्कुल सीमेंटेड फॉर्म में नहीं दिखने लगा, डल नहीं दिखने लगा, ग्रे दिखने लगा। बिल्कुल हम कह सकते हैं कि मूर्ति बिल्कुल नंगी हो चुकी थी। सोने की जरा सी भी परत कवर के रूप में नहीं था। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर, वो गरीबों को देता गया। एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रीव रोजियर, और उन बच्चों के चेहरे गुलाबी हो गए, लाल हो गए, क्योंकि उनको भरपेट भोजन मिलने लगा, प्रसन्न हो गए। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और वो गलियों में खेलने लगे, हंसते थे। वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड, और अब वो जोर से कहते हैं, चिल्ला के कहते हैं कि अब हमारे पास रोटियां हैं, हमें खाने की व्यवस्था है, अब हम भूखे नहीं रहेंगे। Okay, let's ये scroll this page. Just a minute here. Hmm. Then what happened here, student? We have bread now. Who is saying? Both the boys. दोनों ही बच्चे कहते हैं। yes, ठीक है। Then the snow came and after the snow came the frost. और तभी बर्फबारी शुरू हो जाती है, और ठीक उसी के पीछे फ्रॉस्ट भी शुरू हो जाता है। फ्रॉस्ट, फॉग, कोहरा सा पड़ने लगता है, धुआं हो जाता है चारों तरफ। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, ऐसे लगता है कि ये गलियां चांदी की बनी हो, ऐसी सफेद चादर सी फैल जाती है पूरे शहर में। एवरीबडी वेंट अबाउट, everybody went about in furs, and the little boys were scarlet caps and scattered on the ice. गरीब बच्चे जो थे, जो भाई अमीर थे, उनके पास उलन कपड़े भी थे। फर्स, फर मीन्स रोई होता है, तो रोई का सेंस है कुछ गर्म कपड़े थे। बट लेकिन गरीब जो बच्चे थे, इनके पास सिर्फ स्कारलेट कैप थी, और ये स्केटिंग कर रहे थे सिर्फ उस बर्फबारी वाले मैदान पर। देन द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, बेचारा स्वेलो बिल्कुल भयानक ठंड की चपेट में आ जाता है, और ज्यादा ठंड हो जाता है। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, उसने राजकुमार को नहीं छोड़ा। ही लव्ड हिम टू वेल, और वो उन्हें बहुत पसंद करता था। ही पिक्ड अप क्रम्स outside the baker's door when the baker was not looking, and tried to keep himself warm by flapping his wings. और वो क्या करता था? बेकर, बेकरी में जानते हो भट्टी चलती है बेटा, जहाँ ब्रेड बनता है। ठीक है, इससे तो जानता ऐसी हूँ। जगह पे यस सर। वो जाकर अपने आप को वहां सेट करके ठंडक से बचाने के लिए अपने पंखों को भी फड़फड़ा लेता था, ताकि ब्रेड उसकी कौन बॉडी है? में, ताकि उसकी बॉडी में गर्मी आ जाए। ठीक है। गरमा। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन अंत में उसे एहसास हो जाता है कि अब उसकी मृत्यु नजदीक आ गई है। ही हैड जस्ट ही हैड जस्ट एनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर, उसके पास बस इतनी ही ताकत बची थी कि वो उड़ करके एक बार फिर से प्रिंस के कंधे पर बैठ सकता था। वो जाता है, गुड बाय डियर प्रिंस, ही इज सेइंग, ही मरमर्ड, मरमर्ड मीन्स लरजती आवाज में, बिल्कुल टूटती आवाज में वो कहता है, गुड बाय डियर प्रिंस, विल यू लेट मी किस योर फेंक रही हैंड। आवाज। वो कहता है, विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपने हाथ को चूमने दोगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस। राजकुमार ने कहा, मुझे खुशी हो रही है कि अंत में आप इजिप्ट को जा रहे हो। प्रिंस को ये एहसास नहीं है कि स्वेलो अब स्वर्ग को जा रहा है, न कि इजिप्ट की तरफ। ये मरने वाला है। इसीलिए वो कहते हैं कि तुम इजिप्ट जा रहे हो, मुझे खुशी हो रही है। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर, तुम यहाँ लंबे समय तक ठहरे रहे। बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स, फॉर आई लव यू। कहते हैं तुम्हें मेरे हैंड को नहीं, मेरे होठ पर तुम्हें किस करना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बेहद स्नेह करता हूँ, तुम मेरे बहुत ही प्रिय हो।
It's not to Egypt that I am going, said the swallow. swallow ने कहा कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ. I am going to the house of death. मैं मृत्यु के मुंह में जा रहा हूँ. Death is the brother of sleep. He is he not? डेथ जो है, मृत्यु, ये नींद का भाई है. क्या वो ऐसा नहीं है? And he kissed the happy princess on the lips and fell down dead at his feet. और वो हैप्पी प्रिंस के होठों पर किस करता है और गिर पड़ता है उनके पैरों पर. At that moment, a a curious crack sound inside the statue, as if something had broken. और इसी बीच एक जोर की आवाज होती है और स्टैचू में जो हर्ट है, स्टैचू का हर्ट फट जाता है. यहाँ दिया है इनसाइड द स्टैचू, एक आवाज होती है फटने जैसी. एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे कि कुछ फूट गया हो, टूट गया हो. द फैक्ट इज दैट द लेडन हर्ट, और सच्चाई तो ये थी कि जो लेड का हर्ट था स्टैचू के अंदर प्रसन्न राजकुमार का, हैड स्नैप्ड राइट नाउ टू, अब वो टूटकर दो भागों में हो गया. स्नैप्ड मीन्स बेटा ब्रोक, टूट गया. इट सर्टेनली वाज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट. इट वाज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट. बहुत कड़ाके की ठंड हो रही थी और चारों तरफ कोहरा फैला हुआ था. ड्रेडफुल मीन सेंस ऑफ क्रुएल्टी. अच्छा, एकदम निर्दयी ठंड हो रही थी, खतरनाक ठंड. अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर. अगले ही दिन मेयर, आप भी जानते हो मेयर शहरों के हुआ करते हैं, नगर पालिका के हुआ करते हैं, चीफ हुआ करते हैं. तो वो शहर का मेयर आता है और चबूतरे के आसपास घूमता टहलता भ्रमण करता देखता है. बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स. देन टाउन काउंसलर्स के साथ आया था. As they passed the column, he looked up at the statue. जैसे ही वो कॉलम के पास से गुजर रहा था, स्टेचू की तरफ देखता है. Dear me, how shabby the happy prince looks, he said. कितना भद्दा दिख रहे हैं प्रसन्न राजकुमार. See there, how shabby indeed, वास्तव में कितने shabby दिख रहे हैं. Shabby means dull. Cried the town councillors. Town councillors चीख पड़ते हैं. Who always agreed with the mayor, जो कि हमेशा मेयर से सहमत रहते थे. But they went up to the look at it. लेकिन इस पर उसे went up, ऊपर जाते हैं वो देखने के लिए कि क्या हुआ है इसके साथ. The ruby has fallen out of his sword. उनके स्वॉर्ड से रूबी गायब थी. His eyes are gone. आंखें उनकी चली गई थी. And he is golden no longer. और उनके पास जो सोने की परत थी वो भी गायब थी. मेयर ने कहा, In fact, he is little better than a beggar. ये सिर्फ किसी भिखारी से ज्यादा बेहतर स्थिति इनकी है, नहीं तो हम वैसा ही कह सकते हैं. अब इस हैप्पी प्रिंस के पास कुछ नहीं है. लिटिल बेटर देन ए बेगार, सेड द टाउन काउंसलर. टाउन काउंसलर को वंडर फील होता कि ये स्थिति हो गई. एंड एंड once again here I have to scroll here, student, you can see. Now let's focus here. Little better than begar, said the town councillors, and here is actually a dead bird at the feet. यहाँ तो एक मृत पड़े हुए पंछी का भी शरीर पड़ा हुआ है. कंटिन्यूड द मेयर. मेयर अपनी रिपोर्ट करता गया, बताता गया. किसे? काउंसलर को, टाउन काउंसलर को. वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट. और उसने कहा कि हमें एक आदेश निकालना होगा, एक घोषणा करनी होगी कि कोई भी पंछी क्या नहीं कर सकता. वो देखते हम भाई लाइन में क्या क्या ये मना करते उसके लिए कि कोई पंछी क्या नहीं कर सकता था. यहाँ है टू बी अलाउड टू डाई हियर, कोई पंछी यहाँ नहीं मर सकता है. एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन. और टाउन क्लर्क ने एक नोट्स निकाल दिया
सजेस्ट कर दिया कि भाई कोई पंछी यहाँ आके सुसाइड नहीं कर सकता। उनको लगा कि इसने यहाँ सुसाइड किया है या डेथ यहाँ आके अपने प्राण त्यागे हैं। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस। उन्होंने हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को नीचे उतार लिया। एज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल ही इज नो लॉन्गर यूजफुल। अब ना तो वो खूबसूरत रहा और ना ही वो अब यूजफुल रहा। सेट द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालय के आर्ट के प्रोफेसर ने कहा कि ना तो अब यूजफुल है और ना ही ये अट्रैक्टिव बचा अब। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन फर्नेस। उन्होंने, फर्नेस मीन्स क्या होता है बेटा, भट्ठी। उन्होंने एक भट्ठी में इसे गला दिया स्टैचू को। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, बड़ा विचित्र हुआ। सेट द ओवरसीयर ऑन द वर्कमैन एट द फाउंड्री। उस कारखाने में काम करने वाले वर्कर्स ने जब देखा तो उसने कहा कि ये बड़ा विचित्र है भाई। दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस। ये टूटा हुआ जो लेड है ये तो भट्टी में गल ही नहीं रहा है, गलेगा ही नहीं। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसे फेंक देना होगा, फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन द डस्ट हीप ओवर द डेड swallow was also lying। उन्होंने उसे उस कूड़े के ढेर पर फेंक दिया जहाँ पे पहले से ही डेड बॉडी swallow की पड़ी हुई थी, यानी दोनों फिर एक साथ हो गए। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रेशियस थिंग्स इन द सिटी सेड गॉड। भगवान ने कहा कि मुझे शहर से दो सबसे बहुमूल्य चीजें लाकर दो। टू वन ऑफ हिज एंजल्स, अपने एक दूत से कहा भगवान ने स्वर्ग में। And the angel brought him the laden herd and the dead bird। और दूत ने क्या किया, उस डेड बॉडी, पंछी की डेड बॉडी को लाया और उस हर्ड को लाया जो कि लेड का था, जो कि स्टैचू का था, प्रिंस का था। यू हैव राइटली चूजन, गॉड ने कहा तुमने बिल्कुल सही चुना है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, में पैराडाइज मीन बेटा स्वर्ग, मेरे इस जन्नत में दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर एंड इन माई सिटी। और ये मेरे जन्नत में, मेरे स्वर्ग में सदा सदा के लिए यहाँ गीत गाएगा। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी। और मेरे इस सोने के शहर में, इस स्वर्ग में ये प्रसन्न राजकुमार प्रार्थना करेगा। सो हियर स्टूडेंट, आवर चैप्टर इज ओवर नाउ। Okay, Oscar Wilde, who has composed this chapter, student, and you can see here something related exercise is given student what you have to complete. Thank you. Have a nice day.